Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Today we are going to learn about Prose second chapter, A Letter to God. The writer of this lesson is G.L. Fuentes, Gregorio Lopez Fuentes. He was a well-known Mexican novelist, poet and journalist. He was a great character of Mexican Revolution. He was born on 1897 and was died on 1966. He wrote many stories and described the rural areas very clearly and interestingly. The lesson prescribed for us is to God, where a poor farmer named Lencho, who had a great devotee towards God, once he faced some natural disaster and to fulfill his requirement, he wrote a letter to God and posted it to the post office. Some of the post office employees see the letter and to conserve his devotion towards the God, they collected the money and provided it to Lencho. But when Lencho saw the money, he saw that it was lesser than he asked from the God. He thought that the employees of the post office were cheaters. He wrote it in his next letter to the God. He was a very poor person. So students, to knowing this story, let's see our textbook and learn. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From his height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. The house, the only in the entire valley, यानी उस घाटी में केवल एक ही मकान था, वह भी उस लेंचो का था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित था. फ्रॉम हिज हाइट, और उसकी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, जिसकी ऊंचाई से लोग खड़े होकर के नदी को और उस मक्के से लदे हुए खेतों को देख सकते थे. वेयर फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग, जहां पर फूल जो है वो खिले हुए हैं. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, और उस समय पृथ्वी को जो सबसे अधिक जरूरत थी वह थी वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट शावर, एक तेज बारिश की या थोड़ी सी हल्की फुहारें ही पड़ जाएं. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, पूरी सुबह लेंचो जो कि अपने खेतों के बारे में सबसे अच्छा जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया था. यस बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वह जानता था कि खेतों को पानी की जरूरत है. वह आकाश की ओर टकटकी बांधे हुए देख रहा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, और उसने आकाश को देखते हुए अपनी पत्नी से कहा कि हमें वास्तव में अब पानी मिलने वाला है. ऐसा उसने आकाश की ओर देख करके रियलाइज किया. द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, यस गॉड्स विलिंग. प्रिपेयरिंग सुपर, सुपर मीन्स द डिनर, और पत्नी उसकी जो उस समय रात के भोजन की तैयारी में लगी हुई थी, उसने कहा जैसी ईश्वर की इच्छा. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम कम फॉर डिनर. जो बड़े बच्चे थे, लेंचो के जो बड़े बच्चे थे, वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे छोटे थे वे घर के सामने खेल रहे थे. और तब तक वे ऐसा कर रहे थे जब तक कि उसकी पत्नी ने उन्हें आवाज नहीं दी कि आओ और भोजन के लिए बैठो. It was during the meal that just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall.
In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. It was during the meal. खाने के दौरान ही, जैसा कि लेंचो ने पहले से पूर्वानुमान किया था, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई और नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स और उत्तरी पूर्वी दिशा में जो बादलों का एक झुंड सा उमड़ पड़ा और तेज बारिश होने लगी। एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी थी और सुंदर सुमधुर ध्वनि के साथ बह रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed. और वह लेंचो केवल इस कारण से बाहर आया कि वह बारिश के सुखद अनुभव का एहसास कर सके और उसी प्रसन्नता और आश्चर्य के साथ वह अंदर आता है। These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. उसने ये सोचकर वह बाहर गया था कि ये रेनड्रॉप है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ था। वह कहते हुए अंदर आया कि यह बारिश की बूंदें नहीं है बल्कि they are new coins. वे क्या हैं? एक नए सिक्के हैं। बारिश की बूंदों को उन्होंने सिक्के के साथ तुलना किया कि क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट थी उस समय, इतनी जरूरत थी पानी की। The big drops are 10 cent pieces and little ones are 5. उसने कहा कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी हैं वो 5 सेंट के। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped it a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. और एक संतुष्टि के भाव से उसने अपने फूलों से लदे हुए मक्के के खेतों को देखा। Dropped in a curtain of rain, जिनके ऊपर पानी की फुहारें एक पर्दे के समान पड़ रही थी। But suddenly, लेकिन एकाएक a strong wind began to blow, तेज हवा चलनी शुरू हो गई, and with it also fell the big drops of hailstone, और उनके साथ बड़े बड़े ओले पड़ने भी शुरू हो गए। They truly did resemble new silver coins. ये वे वास्तव में नए नए चांदी के सिक्कों के समान दिख रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. Frozen pearls means जमे हुए मोती, यानी वो ओलों के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए बच्चे नंगे हो गए और बाहर घर के निकल पड़े। It's really getting bad now, exclaimed the man. लेंचो ने बड़े ही विस्मय के साथ कहा कि अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly, और मुझे आशा है कि यह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। It did not pass quickly, लेकिन ओले पड़ने बंद नहीं हुए। For an hour, 1 घंटे तक the hail rained on the house. ओले घर के ऊपर पड़ते रहे। The garden, the hillside, बगीचे में गिरते रहे, पहाड़ी पर गिरते रहे, the cornfield, और यहाँ तक कि मक्के के खेतों में भी गिरते रहे। On the whole valley, पूरी घाटी ओलों से भर गई। The field was wide as if covered with salt, और खेत जो थे मक्कों के वो इस तरह से ढक गए थे जैसे कि नमक से ढके हुए। Not a leaf remained on the trees, पेड़ों में एक पत्ते भी नहीं बाकी थे। The corn was totally destroyed, और उसके मक्के का खेत जो था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। The flowers were gone from the plants, पौधों से फूल गिर चुके थे। Lencho's soul was filled with sadness, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, और जब तूफान खत्म हुआ तो वह अपने बेटों के साथ खेत में खड़ा हुआ और बोला, A plague of locusts would have left more than this. उसने कहा कि टिड्डियों का एक दल भी इससे अधिक छोड़ देता। The hail has left nothing. ओलों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn. इस वर्ष हमें कुछ भी मक्के के रूप में मिलने वाला नहीं। All our work that night was a sorrowful one. All our work for nothing. उसने कहा कि यह रात हमारी सबसे दुख भरी रात है, हमारा पूरा कार्य व्यर्थ गया। Yes, no one who can help us. उसने कहा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। We will all go hungry this year. उसने निश्चय करते हुए कहा कि आज इस पूरे वर्ष हमें भूखों रहना होगा। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope help from God. लेकिन उस समय उस घाटी में मौजूद जो अकेला मकान था उसमें मौजूद
जितने भी लोग थे उन सब के मन में एक ही आशा थी, जो हेल्प मिलती वह भी हेल्प किससे थी? हेल्प फ्रॉम द गॉड, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से मिलने वाली सहायता के बारे में वे सोच रहे थे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। उसने कहा कि भले ही पूरी तरह से नुकसान हो गया है लेकिन दुखी न हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्योंकि याद रखिए कोई भी भूख से नहीं मरता है। That's what they say, no one dies of hunger। और उस रात सिर्फ उन्होंने एक ही शब्द वाक्य कहा कि कोई भी भूख से मरता नहीं है। All through the night, लेंचो thought only of his one hope। पूरी रात लेंचो अपनी इसी एक आशा के बारे में विचार करता रहा, the help of God, ईश्वर की मदद। Whose eyes, as he had been instructed, see everything even what is deep in one's conscience। जो कि उसे बताया गया था कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देख लेती हैं, यहाँ तक कि हमारे अंतर मन में क्या चल रहा है वह भी हमारा ईश्वर देख लेता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो की तुलना एक ऑक्स से की गई, मीन्स वह एक बहुत ही परिश्रमी बैल के समान मेहनत करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो कि जानवरों के समान अपने खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके साथ ही उसे यह भी पता था कि कैसे लिखा जाता है, लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक ही बिगन टू राइट लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले रविवार को उसने स्वयं अपना पत्र लिखना शुरू किया और स्वयं लेकर के नगर को गया, जहां उसने पोस्ट ऑफिस के उस बॉक्स में उस लेटर को डाला। It was nothing less than a letter to God, या और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर के लिए पत्र था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। उसने लिखा, हे ईश्वर, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएंगे। I need 100 pesos in order to show my field again and to live until the crops come because the hailstorm। उसने लिखा कि अगर आप हमारे 100 पीसोस की मदद नहीं करते, 100 पैसे नहीं भेजते हैं, तो इस वर्ष न केवल हमारा परिवार भूखा मर जाएगा बल्कि हमें नई फसल बोने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ओलों के कारण। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। उसने लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड, मीन्स ईश्वर के लिए, और उसके ऊपर एक डाक टिकट लिया जो कि उसने डाकखाने से प्राप्त किया और उस पर चिपका करके उसको लेटर बॉक्स में उसने डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and shows him the letter to God। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों में से एक ने, जो कि पोस्टमैन का काम करने के साथ साथ जो पोस्ट ऑफिस के काम हुआ करते थे उसमें भी मदद किया करता था, उस पत्र को लेकर के जोर जोर से हंसते हुए अपने बॉस पोस्ट मास्टर के पास गया। Never in his career as a postman he had known as that address, क्योंकि पोस्टमैन के रूप में अपने पूरे कैरियर में उसने कभी भी इस पते के बारे में नहीं जाना था, और वह पता था ईश्वर का। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। और जो पोस्ट मास्टर था वह एक मोटा सा व्यक्ति था, थुलथुल शरीर वाला, वह भी जोर जोर से हंसने लगा क्योंकि वह बड़ा मजाकिया स्वभाव का था। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली he turned serious and tapping the letter on his desk commented। लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। लेंचो के विश्वास ने उसको गंभीर कर दिया और उसने उस पत्र को अपनी मेज पर टैप करते हुए कहा, What faith I wish। उसने कहा, कितनी आस्था है, मैं चाहता हूं। I had the faith of the man who wrote this letter, steering up to correspondence with God। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस व्यक्ति की जिसने ईश्वर से पत्र व्यवहार करना चाहा है, इसकी आस्था यूं ही कायम रहे, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। उसने पत्र को उस मेज पर पटकते हुए कहा। डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ तक हम लोगों ने पढ़ा। चैप्टर का अगले पैराग्राफ से लेकर के लास्ट तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।